ناظرین، کشمیر بٹن کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز علم۔ ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ وادی کشمیر میں تازہ برفباری سے عام زندگی بری طرح متاثر، بجلی کی عدم ترسیل پر عوام نے جتائی سخت برہمی۔ برفباری کے بعد ضلع حکام کی جانب سے صورتحال کا لیا گیا جائزہ، ڈپٹی کمشنرز نے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے افسران کو دی ہدایت۔ اور کانگریسی نمائندہ شرین نکل مچھو نے ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے پرچہ کیا داخل، مچھو نے تائید کا کیا اعلان۔ سکھ نوجوان کے پاکستان میں قتل کے خلاف 35 پارٹیوں اور پردیش کانگریس شدید رد عمل، پاکستان نے ہندوستان کے مختلف الزامات کو قرار دیا منگھڑت۔ امریکی حملے کے خلاف کشمیر اور کرگل سے بھی شدید رد عمل، بڈگام میں چوتھے دن بھی بازار رکھے گئے بند، زیدی پورہ سری نگر میں بھی کی گئی ہڑتال۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے موسم کی صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ وادی کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان وقفے وقفے سے ہونے والی برفباری نے شہر سری نگر کے اور کشمیر کے دیگر حصوں کو سفید برف کے چادر سے ڈھک دیا ہے۔ تازہ برفباری کے بعد سخت ترین سردی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ واضح ہے برفباری کے بعد اعظم ترین درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے دیگر حصوں میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی برف باری ہوئی ہے، اور پیر کی صبح کشمیر میں مکانات کی چھتوں، سڑکوں، گاڑیوں اور شجر و ہجر پر بھی سفید برف کی چادر جمی ہوئی دیکھی گئی۔ خیال رہے محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیش قیاسی کی تھی کہ 6 اور 7 جنوری کے درمیان وادی کشمیر میں بھاری برفباری ہو سکتی ہے، وہیں میدانی علاقوں میں بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ تازہ برفباری کے بعد کئی ایک علاقوں میں بجلی کی منقطع رہنے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ وہیں تاریخی مغل روڈ کے علاوہ شمالی کشمیر میں سری نگر کو جوڑنے والی کئی ایک سڑکیں بدستور بند ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جس طرح پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ آج سے 48 گھنٹوں تک وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں یا میدانی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے، وہ سچ ثابت ہوئی۔ آج صبح سے ہی وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں اور میدانی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی اور دوسری برف باری کے بعد عام لوگوں کو سخت ترین مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ دوسری جانب جو ڈویژنل انتظامیہ ہے، انہوں نے پہلے ہی ہدایت جاری کی ہے کہ اگر برف باری ہوتی ہے تو کس طرح عام لوگوں کو راحت دلائی جائے، خاص کر جو دور دراز علاقے ہیں ان سڑکوں سے کیسے جلد از جلد برف ہٹائی جائے تاکہ ان کا رابطہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے جڑ سکے۔ ادھر اگر بجلی کی ترسیل کے حوالے سے بات کریں تو جب بھی برف باری ہوتی ہے تو بجلی کی ترسیل پہلے ہی منقطع ہوتی ہے اور عام لوگ شدید سردی میں مزید مشکلات جھیلنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ اگر سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بات کریں، جب بھی برف باری ہوتی ہے تو یہ شاہراہ بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو اشیائی خوردنی کی جو چیزیں ہیں یا اشیائی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ وادی میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، اور عام لوگ یہاں بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ چور بازاری عروج پر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر برف باری ہوتی ہے تو کیا عام لوگ مشکلات کا سامنا اسی طرح کریں گے جس طرح انہیں پہلی اور دوسری برف باری کے وقت کرنا پڑا تھا، یا کہ اس بار انہیں راحت بھی نصیب ہوگی۔ عادل بٹ کے ساتھ شبنم فیاض، 4 ٹی وی نیوز۔ ادھر بارہمولہ کے باشندوں نے بھی برفباری کے بعد انہیں درپیش مشکلات کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ برفباری کی صفائی، بجلی اور پانی کی مناسب سربراہی کو یقینی بنائیں۔ مقامی باشندوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے برفباری سے متعلق
4-5 दिन पहले ही पेश क़ियासी कर दी जाती है, लेकिन देखा यही जाता है कि इंतज़ामिया पहले से इंतज़ामात के लिए तैयार नहीं रहती। कि आज फोरकास्टिंग जो है वो 4-5 दिन पहले ही ये बताते हैं कि आज बर्फ़ होने वाली है, कब कैसा मौसम होने वाला है। उसके बावजूद जो है हमारी जो इंतज़ामिया है या हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके लिए, वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं रहते। अभी देखिए बर्फ़ जो है 3-4 इंच जमा हो गई है, लेकिन रोडों पे बर्फ़ हटाई नहीं गई है, बिजली का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। अब हम सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि इस बारी जो है इंतज़ामिया या पीडीडी या है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि फिर से पिछली बार की तरह 10 दिन 12 दिन के लिए बिजली ना चली जाए, ऐसा बड़ा कुछ हादसा ना हो कि जिसकी वजह से हम लोग फिर सफ़र करने पड़े। रोड से फ़ौरन जो है वो बर्फ़ हटाई जाए, इस चीज़ की हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से भी, जो भी इंतज़ामिया है उससे भी। और फैसिलिटीज़ जो है लोगों के लिए अगर फोरकास्टिंग पहले से होती है तो फैसिलिटीज़ भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स एक्टिव होने चाहिए। हम इसकी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। आज बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ज़ोरों से हो रही है, ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है। तो गाड़ी की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे है, तो रोड भी अभी साफ़ नहीं किए हैं। तो हम महकमे से गुजारिश करते हैं कि ये रोड शोर क्लियर करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज की डेट में सब कुछ हमारे पास पहले ही अवेलेबल होता है, जैसे मौसमियात, वेदर फोरकास्टिंग, सबकी साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि कब कौन सी प्रोडिक्शन, कब क्या होने वाला है। और आज भी एक्सपेक्टेड है कि हैवी स्नोफॉल हो रहा है 6 और 7 को। तो इसलिए हम ये पुरुमीद है कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फास्ट होगी और एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे इकदाम उठाए होंगे जिससे वो हमारे लोगों के मुश्किलात को दूर कर सकें। जैसे हमारे पास बिजली का मसला रहता है, सड़क बर्फ़ हटाने का मसला रहता है, पानी का मसला रहता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब इकदाम पहले उठाए होंगे। कि पिछले साल भी हमारे यहाँ पे जब बर्फ़ हुई तो बहुत दिनों तक बर्फ़ हटाई नहीं गई। तो इस बार हम पुरुमीद है कि एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये सारा इकदाम पहले से हो जाए। और उधर कुपवाड़ा से मुकामी बाशिंदों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए महकमे पीडीडी पर जोर दिया है कि वो इलाके में बिजली की मुनासिब सरबराही को यकीनी बनाएं। ताज़ा बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा के कई हिस्सों में बर्क़ी के मुनक़ता कर दिए जाने की शिकायत मौसूल हुई है। इस दौरान माइनॉरिटी मोर्चे के नायब रियासती सदर अब्दुल-रहमान ने हुकाम से मुतालबा किया है कि आवाम को दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल करें। दूसरी जानिब हंदवाड़ा, जुहेलवाड़ा, बकीकार और वारी पूरा के मुकामी बाशिंदों ने भी बर्क़ी के मुनक़ता किए जाने पर अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए बिजली की सरबराही का हुक्काम से मुतालबा किया है। कट है, मछल है, गुरेज है, टंगार है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ मतलब एडमिशन को तैयार रखें और लोगों का जो मसला ये हल होना चाहिए। बर्फ़ उठनी चाहिए, गलियाँ खुलनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट रोज़ बोलते हैं कि बिजली भी है, पानी भी है, पावर है, मगर हम नहीं देखते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है उतना जितना गवर्नमेंट। टंगडार का रोड बंद है वो तो सही बात है। हम गवर्नमेंट साहब से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मतलब टंगडार का रोड खुलना चाहिए, मछल का खुलना चाहिए। इस वक्त तो बहुत प्रॉब्लम है। इस वक्त पूरा जो हमारा लोग हैं, करना केरन है, टंगडार है, ये तो मुश्किल में फंसे हैं। ये पहले भी हमने अपील की, आज भी हम गवर्नर साहब से दोबारा अपील करते हैं कि जल्द गवर्नर साहब को कि हमारे इलाके में ब्लॉक अपर राजवार खासकर बडरबाला में रोज़ बरोज़ बिजली की ज़्यादा मुतासरीन होते हैं।
और हर साइड में जो ही बर्फ़ थोड़ी सी गिर जाती है तो बिजली चली जाती है, बिजली नहीं रहती है हमारी। और सड़क की भी हर तरफ की प्रॉब्लम है। आज हमारी गाड़ी ऊपर से आई नहीं है क्योंकि जो तो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरा काम नहीं कर रही है हेल्थ सेंटर, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स जितने भी हैं वो बाहर ये गांव में ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ उनको आसान होता है, तनख्वाह यहाँ लेते हैं तो ड्यूटी कहीं और देते हैं, इसलिए वो लोगों को बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अगर डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी में बराबर ड्यूटी दें तो तब लोगों को मुश्किल होती है। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और BDC साहब को एक ही देरी नहीं मांग हमारी है, जो भी जितने भी मुश्किलात है हमारे ऊपर ब्लॉक राजवार में ये दूर हो जाएं, क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो दें। उधर रामबन के पहाड़ी और पसमानदा समझे जाने वाले नील इलाके में होने वाली बर्फबारी के बाद यहां आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। रामबन से तकरीबन 40 किलोमीटर की मुसाफियत पर वाक़े इस इलाके में पिछले 2 महीनों से बिजली मुनक़ता बताई गई है और महकमा PTT इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बर्फबारी के बाद दिगर मसाइल का भी उन्हें सामना है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि बिजली 2 महीनों से मुनक़ता रहने के बावजूद महकमे की जानिब से हर महीना बरक़ी बिल्स जारी किए जा रहे हैं। मेरा नाम फयाज़ अहमद डेंग है। मैं अपनी पंचायत का एक वार्ड का मेंबर हूँ यानी पंच भी हूँ, और हमारा इलाका जो है ये 6 पंचायतों पे मुश्तमिल है और आबादी कम से कम 30,000 से 35,000 तक है यहाँ। और यहाँ के हालात आप देख रहे हो कि कम से कम 20 दिनों से बिजली से हम बिल्कुल मरहूम हैं। यानी किसी भी घर में यानी 6 पंचायतों में बिजली बिल्कुल है ही नहीं, बिजली कटी हुई है और पोल घिरे हुए हैं और तारे घिरे हुई है, यानी बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। हम बिल्कुल अंधेरे में हैं, धूप में छुपे हुए हैं। बिल बराबर अपने टाइम पे आती है और बिल का जब वक्त आता है तो बिल लोग अदा करते हैं और सरकार उस वक्त यानी बिल देना हमें ज़रूरी और लाजमी है। लेकिन बिजली कम से कम 6 महीने से 6 महीने तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं, लाइट को हम बल्ब को देखते ही नहीं जलते हुए। तम बाद बिजली अक दो आम ना काम कर वोल नफर ये थमित जनाब मोहतरम डेली वेजर लड़का तम तक बिचार काम वाम खास कर न तिम अमनेशन न तिम कह मटेरियल न पोल न तार 1975 मज लजम ब्लॉक वाले नश सो क्रेड तार सही लजम तम बाद कह रिपेयरिंग गम न तारी कह चेंज गम न तार हज कह तब्दीली आम वह जनाब अली तुंद वसादत से गुजारिश कर कि अगर ये नजर ना दी बड़ असल गया और जान गया। पावर जनाब आसमान हर रूद फ्योड़ वसान नीलस पावर गसान गो नीलस मज 3 ट्रांसफार्मर लिहाजा वनकस इलाक नीलस मज कम अज कम 50 ट्रांसफार्मर 50 ट्रांसफार्मर अगर बोझो रेन्यू कोता तुम कर पाने हिसाब यम इलाके पे सरकारस कोता फायदे गसान। तम बावजूद अगर रेत वातान पावर बंद रोजान, लिहाजा यन लुकन हंद मुश्किलात कर बार बार दुक अगर सरबगनी चक्का कुन बेस इलाकस मज उगड़ाल इलाकस मज गसान कुन जाए फॉल्ट सह नीलस फॉल्ट नीलस पावर चटे। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जहां इस बात का दावा करती है कि उन्होंने आवाम को हर मुमकिन सहूलियात मैसर रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिनमें बिजली की फराहमी हो, पानी हो, राबिता सड़कें हों या फिर खस्ता हाल सड़कों का सुधार हो, लेकिन हकीकत में ज़मीनी सतह पर जब नज़र दौड़ाई जाती है तो सब कागजी दिखावा सा लगता है। इसी तरह का हाल ज़िला रामबन के पहाड़ी और पसमानदा इलाकों का है, जिन इलाकों में नील ज़ेर बहस है। इलाका नील ज़िला सदर मुकाम से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जहां करीब 25 से 30 हज़ार की आबादी भी रह रही है। हालांकि कई बार सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने इस बात का दावा किया कि इलाकाई लोगों को बिजली की फराहमी के लिए खरबों रुपए खर्च किए गए और हर घर में बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब देखा गया तो आवाम आज भी गुप्त अंधेरे में अपना गुजर बसर कर रही है। इलाकाई लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली बिल जो है वो मुकर्रर वक्त पर हमसे वसूल किए जाते हैं। अफसोस का मकाम तो ये है कि इलाका इतनी बड़ी आबादी
पर मुश्तमिल है, लेकिन क्यों इस इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? इलाकाई लोगों ने जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि वो इस इलाके में आकर यहाँ के लोगों की नज़रसानी करे और बिजली की फराहमी को लेकर ठोस इकदाम उठाए ताकि लोगों को इस बर्फ़ के मौसम में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इलाका पसमानदा होने के साथ साथ काफ़ी बर्फानी भी है, जहाँ आवाम को दरपेश मुश्किलात का सामना है। रामबन से फौज टीवी के लिए बिलाल वानी के साथ मीर मुदस्सिर। उधर पासदारान इनकलाब ईरान मुक़द्दस फोर्सेस के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी जारहाना हमला और कत्ल की मुखालिफत में श्रीनगर के ज़ैदीबिल और बुडगाम में हड़ताल की गई है। श्रीनगर के ज़ैदीबिल में आज बाजार बंद देखे गए। यहाँ बंद बाज़ारों की दीवारों पर कासिम सुलेमानी की तस्वीर चुस्पा देखी गई। ख्याल रहे अमेरिका के दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ ईरान, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, पाकिस्तान के बशमूल करगिल, श्रीनगर और बुडगाम में अवाम ने एहतजाज किए और अमरीकी हमले पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, हशद शअबी के सरबराह अबू महदी अल महंदस और दिगर महलूकीन के हक़ में मज़ाहरे किए। ख्याल रहे 3 जनवरी जुमा के रोज़ अमेरिका के एक जरून हमले में कासिम सुलेमानी अल महंदस के बशमूल जुमला 10 अफराद जाँ बहक हो गए। अमेरिका के इस हमले ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सख्त तनाव पैदा कर दिया है। तेहरान यूनिवर्सिटी में पीर के रोज़ कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के बशमूल ईरान के सियासी, मजहबी और अस्करी क़यादतों ने शिरकत की। ख्याल रहे शाम और इराक़ में सरगर्म रहने वाले दहशतगर्द गुरोह दाइश के खात्मे में कासिम सुलेमानी का एक अहम रोल था। कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ बुडगाम में आज चौथे रोज़ भी हड़ताल जारी रही। बाज़ इलाक़ों में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। वसती ज़िला बुडगाम और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों में पीर के रोज़ ताज़ियती हड़ताल की गई। बुडगाम में वाक़े मरकज़ी इमाम बाड़ा में आज दिन भर मजलिस फ़ातिहा का एहतमाम किया गया, जिसमें क़ुरआन ख़्वानी व मरसिया ख़्वानी के अलावा मुक़र्रिरीन ने भी भरे मजमू से खिताब किया। बुडगाम के अलावा मागाम और पटन के भी कई इलाक़ों में पीर के रोज़ कासिम सुलेमानी के लिए दुआ या मजालिस का एहतमाम किया गया, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उलमा और ज़ाकिरीन ने मुखातिब किया। वसती ज़िला बारामूला के शाहतलपुरा, शादीपुरा, डांगरपुरा और दिगर मुल्हक़ा इलाक़ों में भी पीर के रोज़ नौजवानों ने पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे किए। प्रोटेस्ट हुआ है ये शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत पे एक उनकी हिमायत में और उनकी मज़लूमाना शहादत के ख़िलाफ़ है। और अमेरिका की जो स्ट्राइक हुई है बिल्कुल बगदाद के इस एयरपोर्ट पे, खुद ये जो है इमाम हुसैन के राह पे चलते हो तो इमाम हुसैन ने करबला में एक नारा दिया था, हयात मिन ज़िल्ला, कि ज़िल्लत हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो कासिम सुलेमानी भी हमेशा 40 साल उन्होंने जान बकफ रख के, अपनी जान हथेली पे रख के ये अमली जामा इसको पहनाया है कि हम ज़िल्लत को कबूल करने वाले नहीं हैं। अमेरिका, इसराइल और बड़ी ताकत में जितनी भी कोशिश कर ले, हम झुकने वाले नहीं, अपने अपने मिशन से जो 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। Firstly, I strongly condemn the attack which was brutally attacked on Qasim Soleimani. He was named as the living martyr. Yes, he is a living martyr. He is still alive in our hearts. We are the role models, and we will become, and we will show the terrorists who have attacked our leader, our role model, Qasim Soleimani, and we will tell them, and we will change our characters like Qasim Soleimani, and he will be always our role model.
اور ادھر وادی کشمیر میں تازہ برفباری کے بعد ضلع حکام بھی سرگرم ہو چکے ہیں۔ پلوامہ میں محکمہ ضلع ترقیات ڈاکٹر رگھولا نگر نے اسپورٹ اسٹیڈیم پلوامہ، گجورا کے نالا رومشی آری بل پلوامہ کا دورہ کیا اور یہاں برفباری کے بعد بنی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ زراعت ضلع کولگام کی جانب سے آج کسانوں باغبانوں میں مختلف مشینیں اور اوزار تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ڈی سی کولگام شوکت اعجاز بھٹ کے بشمول محکمہ زراعت کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی ہے، جبکہ ڈی ای کولگام نے برفباری کے بعد ضلع کی صورتحال پر آفیسران سے تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب پر ڈی ڈی سی شوپیان محمد یاسین نے بھی برفباری کے بعد بنی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر بانڈی پورہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بانڈی پورہ بلال مختار کی سربراہی میں 25 جنوری ووٹرز ڈے کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ یا میں صبح پڑھتا تھا ایک ڈیموکریسی اسٹیبلش کو بڑھایا، جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، تو بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں ایک اچھی سسٹم کی، ایک اچھی پولیٹیکل سسٹم کی، اور یہی الیکٹورل ڈیموکریسی ہمیں وہ باقی چیزیں دلائے گی۔ مینجمنٹ آف الیکٹورل لٹریسی کلبس کے سلسلے میں ہم نے یہاں پہ منی سیکریٹریٹ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں میٹنگ رکھی تھی، جس میں ہم نے ہائر سیکنڈری کے پرنسپل صاحبان اور اسکولس کے ہیڈ ماسٹر صاحبان اور میرے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کے ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو یہاں بلایا تھا، اور مقصد ہمارے یہاں اس میٹنگ کا یہ تھا کہ ایک ڈائریکشن ہماری طرف سے ان کو ہوئی، جیسے کہ کس طرح سے یہ کریٹ کریں گے اپنے ریسپیکٹو اسکولز میں الیکٹورل لٹریسی کلبس۔ چلیے ٹھیک ہے، میں سر کل ہی جہاں زیادہ استعمال آئے، چاہے وہ انٹیریئر بھی ہو، آپ کی رضامندی سے جو ہے ویسا کر لو۔ اس کو بھی اگر کوئی اور آلٹرنیٹ سائٹ ہے تو ہم ادھر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر ہی ہو گئی۔ کیا کروں اب ایک سی جائے چلو اس کا کرو ڈسٹرکٹ لیول یہ تجداد کولگام میں جیتی سرکار اوکے یا پی ڈبلیو ڈی ووٹرز کیونکہ پروجیکشن کہیں کی ہوئی تھی تو منسٹری سے ہی ان کو ہم نے اس 169 دے دی وہاں ہم یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، جلد لوٹتے ہیں، دیکھتے رہیے کشمیر بلیٹن۔ فارمیسی لائف لائن کمپلیکس اپوزٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلووم یتی دل راون، دلچ بیقراری، چھاتہ دگ، شاہنس مز تکلیف، بے ہوش گھن تو بلڈ پریشر ہشن بیمارن باپت مشہور تو معروف ڈاکٹر صاحب عرفان احمد پریت آتوار دہ دستیاب۔ امہ علاوہ اتہ کلہ دادین خاص کر مائگرین، سٹروک، مرگی، پارکنسن ہشن بیمارن باپت ڈاکٹر اعجاز احمد بٹ دستیاب۔ فارمیسی لائف لائن کمپلیکس اپوزٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلووم۔ ڈائل کرو 01933 240111 7780851745۔ ویلکم بیک، آپ کا استقبال کرتے ہیں نیوز کشمیر بلٹن میں۔
श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार और कॉरपोरेटर टेंकीपुरा श्रीनगर मटू ने आज अपना पर्चा नामजद की दाखिल किया है। उन्होंने सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मटू और दीगर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर जुनैद अजीम मटू ने नकल मटू की तायद का ऐलान किया है। जैसा कि आपको पता है, जो सूरत हाल यहाँ पे बनी पिछले 2 हफ्ते में, एक स्पॉन्टेनियस इत्तेहाद इवॉल्व हुआ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स का, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस ने हमें उसमें सपोर्ट किया। तो आज उसी इत्तेहाद का एक पहलू ये है कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर जो है टैंकीपुरा से जनाब नकुल मत्तू, उनने आज डिप्टी मेयर की जो नशिस्त है उसके लिए अपने कागज़ जो हैं भरे हैं, नॉमिनेशन पेपर भरा है और हम सब जो आज आपने बखूबी खुद देखा कि सब कॉरपोरेटर्स उनके साथ गए, तादाद आपने देखी और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद रहेगा इस शहर की बेहतरी और बहबूदी के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो नकुल साहब और ये इत्तेहाद फिर से इस मरहले में सुरखरू होगा और बाइज़्ज़त और बावकार इस मरहले को भी पार करेगा। अदर हुकाम के मुताबिक पुलवामा में महकमा ज़िला तरक्यात की जानिब से कायम किए गए इंटरनेट सेंटर से पिछले चंद दिनों के दौरान 60,000 तलबा ने ऑनलाइन खदमात से इस्तेफ़ादा हासिल किया है। ख्याल रहे वादी कश्मीर में 4 अगस्त से इंटरनेट खदमात बंद हैं, जबकि आवाम को ऑनलाइन खदमात की फराहमी के लिए कश्मीर के तमाम तर अजला में इंटरनेट खदमात के मराकज़ कायम किए गए हैं। पुलवामा के सर्किट हाउस में कायम किए गए इंटरनेट सेंटर पर रोज़ाना बड़ी तादाद में अवाम बिलखुसूस तलबा रुजू हो रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर इस तरह के मराकज़ पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। कश्मीर के बाशिंदों का कहना है कि इस तरह के मराकज़ उनके लिए नाकाफ़ी हैं और वो सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। और ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में बड़ी तादाद में यूनियन के अरकान ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने जायलॉजी माइनिंग के खिलाफ एहतजाज किया। NPP जम्मू जोन के सदर राजेश पडगोट्रा एहतजाज की सरबराही अंजाम दी। जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, राज्य प्रशासन, राज्य के गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट, ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट। देखिए, आज बीजेपुर के चौक में आज अलग अलग गांव से जो ट्रैक्टर ट्रालियों वाले जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी एक ही डिमांड है कि 1.5 महीने से सरकार ने रेत और बजरी के ऊपर जो बैन लगाया हुआ है, इसका सरकार जवाब दे कि किस वजह से जो है बैन लगाया हुआ है। आज चोरी छिपे, आज जो है वो गुंडागर्दी की वजह से जो लोग मिली वक्त से आज रेता बजरी जो है वो दिन रात वो काम कर रहे हैं और ब्लैक में रेत बजरी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग जिन्होंने अपनी जमीनों को मार केस करके ट्रैक्टर लिए हुए हैं, जैसे बाकी मशीनरी ली हुई है, 15-15 कनाल 20-20 कनाल जो है वो बैंकों को जमीन मार केस पे दी हुई है, और लेकिन आज इनकी जो है वो रोजी रोटी के ऊपर जो है वो लात मारी जा रही है। और इसकी जो जिम्मेवार जो है वो राज्य प्रशासन है और जिला सांबा का प्रशासन। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार, राज्य प्रशासन
इनकी मांगे जो है वो फौरी तौर के ऊपर माने, नहीं तो आने वाले वक्त में हजारों की तादाद में ये लोग बच्चे अपने परिवार समेत जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो सिचुएशन क्रिएट होगी। उधर पंडित कॉलोनी शेर बारामूला इलाके में कई एक मुसाफिर बरदार गाड़ियां सड़क पर पैदा होने वाली फिसलन के नतीजे में 200 फुट नशीबी हिस्से में उतर गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ताज़ा बर्फबारी के बाद पंडित कॉलोनी शेर बारामूला इलाके में यह हादसा पेश आया है। तहम यहाँ 46 RR फौज की जानिब से मुसाफिरीन की राहत और बचाव के काम तेज़ी से अंजाम दिए गए हैं और लोगों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। 46 RR की जानिब से अंजाम दी गई बचाव कार्रवाई पर मुसाफिरीन ने खैर मख्तम करते हुए अपने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। वो गया है एक मसला लहरें नहीं जान था मगर ना ये दो थोड़ी थी, एक लेके एक चला ली। साइड हो जा। JNK खिदमत सेंटर एसोसिएशन का एहतजाज आज 16वें दिन में दाखिल हो गया है। आज प्रेस क्लब जम्मू में एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया गया। उन्होंने अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए मंगल से भूख हड़ताल शुरू करने का भी ऐलान किया है। आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है। आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है। इसका फैसला कौन करेगा? बैंक करेगा, बैंक करेगा। इसका फैसला कौन करेगा? बैंक करेगा, बैंक करेगा। जीना है या मरना है। आज हमारा धरना है, आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है। इसका फैसला कौन? जी, मेरा नाम शफात अहमद है। मैं जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन का एक कार्यकर्ता हूं। हम 2009 से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हमारा जो प्रदर्शन है 14वां दिन इसका चल रहा है और हमारी जो जायज़ मांग है जम्मू कश्मीर बैंक से वो ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। अभी तक जम्मू कश्मीर बैंक के एंड से कोई नहीं हमारे पास आया है। हम माननीय चेयरमैन साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी जो जायज़ मांग है पूरी की जाए। अगर हमारी जो जायज़ मांग पूरी नहीं हुई तक तो हम कल से हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर इसमें कोई खेत हुई तो उसमें माननीय चेयरमैन और JK बैंक जिम्मेदार। उधर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की फौरी तौर पर बहाली और जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात के इनेकाद का हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया। नए एडवाइज़र जम्मू कश्मीर में नियुक्त हुए हैं और इस तरीके से 3 एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर के जम्मू कश्मीर में अपॉइंट कर दिए गए। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए एडवाइजर्स की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है और जमहूरी निजाम को बहाल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। संविधान ये कहता है कि असेंबली के इलेक्शंस जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि
कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन कोई भी कोशिश तक केंद्र की तरफ से नहीं की जा रही। प्रॉक्सी रूल यहां चलाया जा रहा है, बाहर के ब्यूरोक्रेट्स को यहां लाकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस को ही आउटसोर्स कर दिया गया हो। पैंथर्स पार्टी यह मांग करती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट दी जाए, जो एक रेपो बना सके लोगों के साथ, क्योंकि चुनी हुई सरकार ही लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकती है। जिस तरीके से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और यहां का निजाम जो है वो बाहर वाले ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया गया है, पैंथर्स पार्टी उसकी मजम्मत करती है। जोर जबरदस्ती से निजाम को चलाने की जो कोशिश की जा रही है, प्रॉक्सी से जो जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, यह सरासर गलत है। और जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आगे नाज़रीन आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो शबनम, आवाज़ आ रही है हमारी आपको? जी जी जी। शबनम, ताज़ा बर्फबारी के बाद किस तरह की सूरत हाल है कश्मीर में? देखिए, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि आज से वादी कश्मीर या जो पहाड़ी इलाके हैं हल्की से दरमियान दर्जे भारी बर्फबारी हो सकती है, तो बिल्कुल वही हुआ। और ये बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। हेलो जी हाँ, ये बहुत दिनों से ये बोलते आ रहे हैं, ऐलान किया जा चुका था पहले। बिल्कुल हाँ, इस दौरान जहाँ खुश्क मौसम था उसमें बदलाव भी देखने को मिला और लोगों ने राहत की सांस भी ली। ताहम फिर भी जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, खासकर बिजली के हवाले से, वो परेशानी फिर पैदा होने लगी है। लेकिन अभी जो है मैदानी इलाकों में इतनी बर्फबारी शदीद नहीं हुई जिस तरह पहले 2 बार हुई थी, और जो सड़कें कट कर रह गई थी, दूर दराज इलाके कट कर रह गए थे, तो इस तरह अभी बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है, जहर टनल और काजीगुंड के मुकाम पे जिस तरह बर्फबारी हुई है, तो यहाँ पे पहले ही आज सुबह, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक को इजाजत थी चलने की, तो हम 600 गाड़ियां जो करीब जो पहले ही पार हो चुकी थी, तो उनको या तो पहुंचाया गया था या कुछ अभी भी गाड़ियां जो है दरमांदा है, क्योंकि इस सड़क को अब ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। डिगडोल के मुकाम पे पस्सियां गिराई है, और जो आवाम की जो जिंदगी है उनको महफूज रखने के लिए ट्रैफिक हुकाम ने इस तरह का कदम उठाया। और कल जो मशवरा दिया गया है कि कल इन्हीं दरमादा गाड़ियों को जो है निकाला जाएगा, और किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं होगी। वही वीरवन पंडित कॉलोनी जो बारामूला की जगह है, वहां पे उड़ी से 3 गाड़ियां आ रही थी, वो 200 फीट जो है नीचे गिर गई। तो हम यहाँ पे 3 जो लोग थे वो जख्मी भी हुए। फौज ने काफी कोशिशों के बाद जो है इन जो अशखास या जो मुसाफिर थे उनको बाहर निकाला, और यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस दौरान अगर दीगर मुकामात की बात करें, तो आज फिर जो बडगाम की बात करें या जेडीबल श्रीनगर की बात करें, जहाँ पे काफी तनाव भी देखने को मिला, क्योंकि जनरल कासिम सलमानी जो इराक में एक अमेरिकी हमले में जाँ बहक हुए थे, उसकी वजह से शिया अक्सरती इलाकों में काफी एहतजाज भी हुआ, और अमेरिका और इसराइल मुखालिफ जो है नारेबाजी भी हुई। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जहाँ सर्दी की शिद्दत से लोगों को मुश्किलात है, वहीं पे हालात जो है वो अभी बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर शिया इलाकों की बात करें, काफी तनाव यहाँ पे है। ठीक है, इस सब के चलते हुए जहाँ बर्फबारी भी हो रही है, कई गाड़ियों की फिसलन भी हमने देखी है, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोगों पर बरक़ी भी मुनक़ता हो गई है और आवाम काफ़ी परेशान है। सुना है 2 महीनों से जो है बरक़ी का कोई पता नहीं है, क्या कह रहे हैं हुक्म? देखिए, जब भी यहाँ पे सरमा का मौसम होता है, विंटर आता है, तो अक्सर बेशतर देखा गया है कि वादी में बिजली गुल रहती है, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में लोग रहते हैं, और इस बार इसमें मजीद इजाफा देखने को मिला। और जब पहली बर्फबारी हुई तब से लेकर आज तक जो बिजली की तरसील है वो
बेहतर नहीं है। जहां दूर दराज इलाकों में इस तरह की मुश्किलात का लोगों को सामना रहता था बिजली के हवाले से अगर बात करें, लेकिन आजकल शहरी श्रीनगर या जो बड़े कस्बाजात हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर के हों, साउथ कश्मीर के हों, यहाँ के अवाम को ये मुश्किलात झेलने पड़ रहे हैं। और जो मीटर्ड एरिया है वहाँ मुश्किलात है। बिजली के हवाले से जो भी सरकारी दावे हैं वो अक्सर बेशतर गलत साबित हो रहे हैं और हुए हैं, और आजकल तो ज्यादा ही इसमें जो है देखने को मिल रहा है ये चीजें हैं कि बिजली बेहतर तौर जो है आवाम तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है। जैसे कि हमने सुना भी है, आपने भी बताया कि कई दिनों पहले जो है इसका ऐलान कर दिया था कि बर्फबारी होने वाली है, लेकिन हुकाम ने कोई इसका इंतजाम नहीं किया। कौमी शाहरा और दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम अभी इसका क्या हाल है, दरहम बरहम पाया जाए? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है ये लाइफ लाइन है अगर वादी के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि अशिया ज़रूरियात जो है, चाहे खाने पीने की अशिया जो है, चाहे रसोई गैस है, तेल है, या जो पेट्रोल पंप्स के लिए जो तेल आता है, या अगर अद्वियात की बात करें, बहुत सी चीजें जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है वो चीजें जम्मू से श्रीनगर या मुल्क के दूसरे हिस्सों से श्रीनगर पहुंचाई जाती है, और यही वो रास्ता है जो इसके लिए मतलब काम में लाया जाता है। लेकिन कई बरसों से हमने देखा जब से इसको 4 लाइन में तब्दील करने की कोशिश की गई और काम जारी रहा, और ऐसे तरीके से इन पहाड़ों को काटा गया कि हर बार हर हफ्ते 2-2, 4-4 दिन जो है ये सड़क बंद रहती है, और कश्मीरी अवाम को जैसे मुश्किलात के भंवर में धकेला जा रहा है। अगर इस हवाले से बात करें, अगर यहाँ से मेवा जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, वहां से चीजें बेहतर तौर नहीं आ रही है, मुसाफिर आए रोज यहाँ पे फंसे रहते हैं, हादसे होते हैं, हुकाम सिर्फ देखते हैं, बयानात देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर मरकजी सरकार की बात करें, यहाँ की इंतजामिया की बात करें, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हाँ, सिर्फ इतना कहा जाता है कि ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू कब जाएगा, कब गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी, इतना करके तसल्ली लोगों को दी जा रही है, लेकिन असल में जो है लोगों को अजाब में धकेला जा रहा है। इसी के चलते इंटरनेट पर भी जो है इम्तना आयद है पिछले कई माह से, तो नतीजे में अवाम बिलखुसूस तलबा को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या हाल है तलबा का? इंटरनेट सेंटर काफ़ी बताए जा रहे हैं, नाकाफी बताए जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुस्तकबिल हम कहते हैं, जो पढ़ाई के हवाले से, तालीम के हवाले से पूरे मुल्क में जोर शोर से जो सेमिनार होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, लेकिन अगर तालीम के हवाले से आज हम बात करें, वादी कश्मीर के बच्चों की बात करें, काफी उनके जो वालिदैन है परेशान है, क्योंकि जहां उनको फॉर्म सबमिट करने होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, उनको आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में हर जिला हेडक्वार्टर पे ये बच्चे जिनमें बच्चियां भी हैं, इस सर्दी की शिद्दत में खड़ी रहती हैं, और कोई कोई उनको मतलब राहत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम वहां पे लगाए जाते हैं उनसे कहीं ज्यादा तादाद में बच्चे बाहर होते हैं। जो बर्फ गिरती है, जो बारिश होती है, जो शिद्दत की सर्दी है, खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके से यहाँ के बच्चों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकाम जो है शायद अभी इंटरनेट की बहाली के हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जो इन बच्चों को राहत मिलती। वहीं अगर आज आपने देखा होगा कि मीडिया से जुड़े जो लोग हैं, प्रेस क्लब श्रीनगर में आज सेमिनार हुआ, फिर वो खामोश प्रोटेस्ट हुआ, और फिर ये मांग दोहराई गई कि कम से कम आप सोचिए, जिन अखबारात, जिन जो इदारे है, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, कम से कम ऐसे लोगों को अब काम करने तो दें, क्योंकि जो काम वो करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्हें राहत मिले वो उनको नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से वो आसानी के साथ अपना काम आगे बढ़ाएं वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ लोग हर तरीके से परेशान है। अब स्टूडेंट्स हो, चाहे मीडिया से जुड़े लोग हों, चाहे और जो आम आवाम है, वो काफी परेशान है जिस तरह इंटरनेट को यहाँ बंद किया गया है। जैसे कि मरकजी हुकूमत बात करती है डिजिटल इंडिया की, और इस तरह के हर जगह नेट, अगर इंटरनेट की खदमात मअतल रहेंगी तो कैसे डिजिटल इंडिया बन पाएगा? लेकिन सरकार दिल्ली से ये जरूर कहती है कि डिजिटल इंडिया, लेकिन कम से कम ये जरूर उनको कहना चाहिए, जो हालात हम कश्मीर में देख रहे हैं वो कहे डिजिटल इंडिया बगैर कश्मीर के। जी। तो आखिरी सवाल चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कि जो सियासी महरूसीन हैं उनके हवाले से क्या ताज़ा इत्तलाआत आपके पास है शबनम?
देखिए, हुकाम को जहाँ पे लगता है, इंतजामिया को जहाँ पे लगता है, जहाँ उनको ये लगता है कि किसी ऐसे लीडर से जो अमन अमान के लिए खतरा नहीं है, तो शायद ऐसे लोगों को अभी, ऐसे सियासी लीडरान को भी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो अक्सरियत है सियासी लीडरान की, तमाम सियासी पार्टियों की, उनको अभी भी नजरबंद रखा गया है। और आज गुलाम मोहम्मद शाह जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी हैं, 11वीं बरसी मनाई गई, लेकिन वहाँ जो उनके साहबजादे हैं मुजफ्फर शाह, उनको आज इस बरसी की जो तकरीब थी, इसमें इजाजत नहीं दी गई। जाहिर सी बात है, अभी भी यहाँ के सियासी लीडरान जो है वो नजरबंद है और अभी शायद दिल्ली सरकार को ये भरोसा नहीं है कि अगर इनको छोड़ा जाए तो अमन बरकरार रह सकता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी हालात सुधरे नहीं हैं कश्मीर के। हम उम्मीद इतना है कि जो ट्रांसपोर्ट है, दुकानें हैं, वो बिल्कुल खुली है, कारोबारी सरगर्मियां अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं। लेकिन अगर सियासी तरीके से बात करें, चाहे वो अलाइदगी पसंद हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम लीडरान हो, अभी ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है कि उनको छोड़ के उनको जमहूरी अमल में शामिल होने की इजाजत दी जाए। अभी ये भरोसा शायद दिल्ली सरकार को नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबनम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम फिर कभी आपसे रब्ता कायम करेंगे। आगे की खबरें जारी हैं। JNK प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से जम्मू में आज ननकाना साहब वाक़या और यहाँ एक सिख नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में प्रदेश यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के अलामती पुतले को नजर आतिश किया और मोदी सरकार पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाए। पाकिस्तान 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 होश में आओ, होश में आओ पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस की पूरी टीम और हम सब मिलके आज का जो प्रोटेस्ट करने का हमारा मुद्दा यही था। जो ननकाना साहब पे हमला किया गया, जो पत्थर फेंके गए, बड़ी निंदे करते हैं उसकी पूरी टीम, हम पूरी यूथ कांग्रेस की टीम, जो एक तरफ से पाकिस्तान गुरुद्वारा बना के देता है और दूसरी तरफ से उन्हीं शरारती लोग जो पत्थर मारने की बातें करते हैं, वहाँ शरारतें करते हैं। और आज कल एक जो हमारे भाई एक रविंदर जी सरदार जी, उसको मारा गया यूथ के, ये हम कड़ी इसकी निंदा करते हैं। हमारे जो तड़ी पार होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उनसे कहना चाहते हैं कि कहाँ के आज आपके लोगों के 56 इंच के सीने की बात करते थे, कब कार्रवाई करेंगे, कब इन लोगों को जवाब देंगे। बार बार पाकिस्तान शरारतें करते जा रहा है और आप अपने 56 इंच के सीने की बातें करते हो। हमें कार्रवाई चाहिए, जिन लोगों ने शरारत की है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकत कोई ना करे। और उधर अक़लियतों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने बेबुनियाद करार देते हुए उनको भारतीय प्रोपेगेंडा करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पेशावर और ननकाना साहब में इनफरादी वाक़यात को अक़लियतों की सूरत हाल से जोड़ना पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने भारत पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ामात आयद किया गया कि भारत में अक़लियतों के साथ मुनज़्ज़म तरीक़े से इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। ऐसी बातें बीजेपी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। पाकिस्तानी तर्जुमान ने भारत पर पेचा इल्ज़ामात आयद किए। तर्जुमान ने दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में सिख मज़हब समेत तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों का मुकम्मल एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ननकाना साहब में संगबारी के वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को उन्होंने बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया भर में सिख कम्यूनिटी पाकिस्तान की अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ विजन से आगाह है। माह नवंबर 2019 में करतारपुर साहब गुरुद्वारे का इफ्तिताह इसी विजन का अक्कासी है। ये झूठ RSS के एजेंडे का हिस्सा है जो नाकाम होगा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सिख नौजवान की टारगेट रंग को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिश भोंदी है। वाक़े के फौरी बाद मुकदमा दर्ज करके आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं और आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करता है। तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर दायां बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने JNU तलबा के खिलाफ एहतजाज किया।
उन्होंने बाएं बाजू जमातों तंजीमों के खिलाफ नारेबाजी की। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ JNU के तलबा पर मुबैना तौर पर ABVP के तलबा ने रात की तारीकी में हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब जम्मू में तलबा JNU के मुतासरा तलबा के खिलाफ ही मुजाहरा कर रहे हैं। बच्चे अगर इन कैंपस से सेफ नहीं है तो बाहर अगर उनको सिक्योर पकड़ के स्टडीज के नहीं किसी के बाप का 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 इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। हॉस्टल के अंदर जाकर आप कैसे सिक्योरिटी वहाँ की इंचार्ज वो कहाँ पे किया जाए। और इंटरनेट की मुआतदी से गैस सार्फिन के खातों में सब्सिडी जमा नहीं हो रही है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 माह से इंटरनेट खिदमात पर जारी पाबंदी के बायस बेशतर गैस सार्फिन के खातों में सब्सिडी जमा ही नहीं हो रही है, जिसके बायस उन्हें तंग माली हालात में भी मुकर्ररा रेट्स पर गैस खरीदना पड़ रहा है। उधर वादी के गैस सार्फिन का इल्ज़ाम है कि वादी में गैस एजेंसियां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने का बहाना बनाकर सारिफिन को गैस फराहम करने से इनकार कर रही हैं, जिससे सारिफिन को उस वक्त गैस की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है जिस वक्त गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले गैस सारिफिन के एक ग्रुप ने UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा है कि 5 अगस्त से गैस एजेंसियां उनके खातों में सब्सिडी जमा नहीं कर रही हैं। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइंस पर फिर एक नज़र। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की अदम तरसील पर आवाम ने जताई सख्त बरहमी। बर्फबारी के बाद जिला हुकाम की जानिब से सूरत हाल का लिया गया जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को बेहतर सहूलियत फराहम करने ऑफिसरान को दी हिदायत। कांग्रेसी नुमाइंदा शीरीन कलमचू ने डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए पर्चा किया दाखिल। जुनैद मची ने दाई कर दिया ऐलान। सिख नौजवान के पाकिस्तान में कत्ल के खिलाफ 35 पार्टी और प्रदेश कांग्रेस शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इल्जामात को करार दिया मनगढ़ंत। और इधर अमेरिकी हमले के खिलाफ कश्मीर और करगिल से भी शदीद रद्द अमल। बुडगांव में चौथे दिन भी बाजार रखे गए बंद। जैदीपुरा श्रीनगर में भी की गई हड़ताल। इसी के साथ ही कश्मीर बटन खत्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।